Hello everyone, how are you all? I hope you all are having an amazing day. So we are on with chapter number 7, that is global warming, and we have seen half of the lesson in our previous video. Today we are going to finish our this lesson by seeing the next point. So in the last lecture we had seen introduction, the greenhouse effect, the greenhouse gases, overview of greenhouse gases in the year 2018, effects of global warming, and effects on ocean, effects on the sea level, effects on agriculture, effects on forestry, effects on water resources, effects on terrestrial ecosystem, effects on human health, and also the economic consequences. So these all are the slides which we have already done in our past lecture. So now today we are going to see the further part, that is measures to control global warming. Now global warming is something which is coming from the greenhouse gases. So major gases whichever are there, I will read it once again for you. The major greenhouse gases, these are the water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, CFC, and ozone. So the water vapor comes from the process of evaporation. Later on, the carbon dioxide comes mostly from the human's respiration, or you can say even vehicles. The methane also comes from the vehicles, the black gas which comes from the vehicles due to petrol, you can say, due to CNG, you can say, or due to diesel, you can say, that also come from the um, vehicles, the pollution. Then the oxide is an important component that comes from the industries. Okay, so industries, big chimneys are there, and that's why the chimneys are high. So it directly goes in the atmosphere, doesn't mix up with the air which we are breathing. Then CFC is present in the cool substances like the ACs and the refrigerator, and also the ozone, which is the gas which is due to the reflecting of the UV rays. So how to stop or control global warming? Now see, in this world which we are living today, the technical world, it is very important to stop global warming because we all are dependent on the vehicles. We all are the, you can say, कठपुतली of the vehicles. So you तुम लोग नहीं स्टॉप कर सकते उसको, बिल्कुल भी स्टॉप नहीं कर सकते, बट यू कैन कंट्रोल इट. हाउ यू कैन कंट्रोल इट? सबसे पहले तो रेड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब जो भी है, कार्बन डाइऑक्साइड बोलो, मीथेन बोलो, CFC बोलो, या फिर वाटर वेपर थ्रू जो होता है वो. सो ऑल दिस थिंग्स यू कैन reduce. You can reduce the carbon dioxide. How can you reduce the carbon dioxide? Obviously you can reduce the carbon dioxide by running less vehicles, and the means you can वॉश योर व्हीकल्स. उसका जो ट्यूब या पंप रहता है, या उसका जो आउटलेट रहता है गैसेस का, उससे तुम लोग reduce कर सकते हो. Then reducing the use of fossil fuels. Now what is fossil fuels? Fossil fuels directly implies, or directly it indicates to the पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी. सीएनजी को जरा साइड में ही रखते हैं. लेट अस concentrate on petrol and diesel. Also coal will come in this. So what is there in this, कि जब भी हम लोग अपने vehicles चलाते हैं, जैसे कि you can say car, or you can say truck, or you can say scooter, or you can say bike, or you can say any rickshaw, तो उसमें जो फॉसिल फ्यूल लगता है, जैसे कि पेट्रोल एंड डीजल एंड सिमिलर थिंग्स, सो वो जो है पेट्रोल और डीजल, उसको हम लोग ज्यादा यूज करेंगे तो वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारे गाड़ी की मशीन चलती है. इट starts working, and when it starts working, it releases the black color carbon dioxide, or you can say any other gas which is responsible for creating the greenhouse gases. So that's why the use of fossil fuels should also be reduced.
Also reforestation. What is forestation? Forestation मतलब पेड़ लगाना, या लाइक यू कैन से प्लांटिंग नंबर ऑफ ट्रीज. अगर समझो हमने किधर पेड़ काट दिए, जिसको डिफॉरेस्टेशन भी बोलते हैं. फॉरेस्टेशन का अपोजिट है डिफॉरेस्टेशन, एंड फॉरेस्टेशन का वन स्टेप अहेड है रिफॉरेस्टेशन. सो डिफॉरेस्टेशन से व्हाट विल हैपन, डिफॉरेस्टेशन से सब जो पेड़ है वो काट देते हैं. तो रिफॉरेस्टेशन मतलब क्या, समझो अगर 1 एकड़ लैंड है, उसके अगर पेड़ हमने काट दिए, तो दूसरा किधर भी 1 एकड़ लैंड लेके उधर नए पेड़ लगा. दिस विल बी रिफॉरेस्टेशन. सो द मेजर्स टू कंट्रोल द ग्लोबल वार्मिंग में रिफॉरेस्टेशन भी आता है. ओके, सो लेट अस सी वंस अगेन मेजर्स टू कंट्रोल द ग्लोबल वार्मिंग: reducing carbon dioxide, reducing the use of fossil fuels, and reforestation. Along with this, along with this slide, there is a photo also. मतलब एक छोटी सी इमेज है नीचे, उधर वन साइड में लिखा है टू द राइट साइड, हाउ टू reduce द ग्लोबल वार्मिंग. तो एक आदमी है पीछे की तरफ, वो पेड़ लगा रहा है, राइट? कैन यू सी दैट? सो दैट इज ओनली रिफॉरेस्टेशन. फिर इधर है एक आदमी है, वो कचरा अपना डाल रहा है और उधर रिसाइकल लिखा. व्हाट इज रिसाइकल? रिसाइकल इज द यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल इन अ गुड वे. जिसे भंगार वाले करते हैं, अपने पास से कूड़ा कचरा लेके जाते हैं या ऐसी चीजें जो यूज में नहीं है, और जब भी वो वापस ये करते हैं, जब भी वो वापस यूज करते हैं, दैट टाइम इट कम्स आउट टू बी अ प्रोडक्टिव थिंग. फिर है यूज लेस हॉट वाटर. फिर है चेंज अ लाइट बल्ब. आई टेल यू व्हाई यू शुड चेंज अ लाइट बल्ब. क्योंकि लाइट बल्ब में वैट्स बहुत ज्यादा लगते हैं. लाइक अभी मैं जिस ट्यूब के नीचे बैठी हूँ, दैट इज 40 वैट्स, या आई एम सॉरी, दैट इज 20 वैट्स और सिमिलर थिंग. और जो बल्ब है दैट इज 40 वैट्स. सो वो डबल पावर लेता है, पर अंधेरा उससे रहता है, एंड we don't even feel good now whenever we sit under a bulb. So change the bulb, use another LED bulbs instead. Then switch, use the off switch. Use the off switch मतलब अगर कुछ यूज में नहीं है, suppose if I am sitting in this room now when I will go inside to my bedroom or to my kitchen, so जब भी मैं यहाँ से रवाना हो जाऊंगी, I have to switch off the light and I have to switch off the fan as well. Why? Because you should use the resources carefully. उसी के वजह से कहीं ना कहीं ऊपर नीचे the global warming will be controlled. Then how you can stop global warming? Yeah, it is not, I am telling you once again, it is not easy to stop the global warming, but how you can control? So speak up. जैसे मुझे मालूम है कि ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से हुई होती है, तुम्हें नहीं पता कि ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होती है, तो आई एम टॉकिंग टू यू, या आई एम टॉकिंग टू यू कि तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग वैसा करो, तुम लोग ये मत करो, तुम लोग वो करो. So I'm speaking up to you. Yeah, without speaking up, you can't convey your messages to anyone. And when you can't convey your messages to anyone, it becomes very difficult to share our thoughts. And when it becomes difficult to share our thoughts, we can't tell the person कि तुमको ये करना है या ये नहीं करना है. So you should speak up whenever it comes, not only about global warming, but also about other things also. जैसे pollution के बारे में you should speak up. Population के बारे में you should speak up. Then waste management के बारे में you should speak up. Sustainable development के बारे में you should speak up. Then you can also speak up about different things, political rights. But you should be very sure कि जो भी तुमको knowledge है वो एकदम सही हो. अगर तुमको ही सही knowledge नहीं है, and if you are going to impart it to someone, it it makes your character negative, because अगर तुमको उसकी knowledge नहीं है, you don't have the right to speak. So study and speak up. I will tell you from my side that study and then speak up, because environment is an open topic. It is an open topic. जितना भी बोल सके उतना कम है environment के बारे में. Now I will tell you something. Some other person will tell you something. Third person will tell you something. Fourth person will tell you something. तुम्हारे घर में कुछ अलग बोलेंगे, तुम्हारे friends कुछ अलग बोलेंगे,
फिर तुम कुछ अलग सोचोगे, all is about environment. But eventually what we have to do, we have to protect the environment, and we have to also protect the ozone layer. After that, power your home with renewable energy. Now what is renewable energy? मतलब एक energy जो वापस वापस use कर सको. Now like you can say अभी बैटरीज आए हैं. बैटरीज मतलब जिसको हम सेल बोलते हैं. वो बैटरीज कैसे आए कि अभी बैटरी यूज करो और फिर वो चार्ज करो. सो दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी. देन इन्वर्टर इज देयर. व्हाट यू शुड डू, यू शुड मतलब इन्वर्टर में क्या होता है, बैटरीज होते हैं, फिर वो वाटर लेवल होता है. उस वाटर लेवल को मेंटेन करो. अगर तुम लोग उस एनर्जी को पूरी तरह से खत्म कर दोगे, एंड इट विल कॉज अ डिस्ट्रक्शन टू योर इक्विपमेंट्स. सो पावर योर होम विथ रिन्यूएबल एनर्जी. दूसरी बात ऐसी, मतलब अगर तुम लोग बैटरीज यूज कर रहे हो, तो वो अगर खत्म हो गए तो फेंक के मत डालो. ट्राई टू रिसाइकल इट. या मतलब you can't recycle it on your own, but you can do it from your you can give it to someone to recycle. अभी देखो, power your home with renewable energy. Now I will take into consideration water. Okay, देखो एक जापान में या चाइना में एक बहुत अच्छे सिस्टम है कि जो भी तुम पानी अपने हाथ धोने के लिए यूज करते हो, लाइक फॉर वॉशिंग योर हैंड्स आफ्टर योर मील और एनी पर्पस, जब भी तुम लोग हाथ धोते हो, तो वो पानी जाएगा तुम्हारे फ्लश में. या और फ्लश में वो पानी जाने के बाद वेन एवर यू आर फ्लशिंग द commode, or you can say whenever you're flushing your washroom, that water which we have already used for washing our hands will be used to wash our waste product as well. So means what, एक एनर्जी है उसको हमने यूज की, मतलब वाटर एनर्जी और वाटर टू वॉश अवर हैंड्स. तो एक काम हो गया. अभी जो पानी हाथ धोने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, अभी वो तो गंदा पानी हो गया, कभी कभी अच्छा भी हो सकता है. बट टू डिस्कार्ड अवर वेस्ट प्रोडक्ट्स, ऐसे कुछ मतलब ऐसे कुछ कंपल्शन नहीं होता है कि पानी अच्छा ही चाहिए या कुछ. सो दे यूज द ब्रेन, कि मतलब जहाँ पे बड़े बड़े ये है, बड़े बड़े फंक्शंस है, वहाँ पे पानी कम है, तो व्हाट दे डू, दे कीप द हैंड वॉशिंग stand close to the commode, और वो पानी फिर उधर जाता है, and whenever someone flushes it you can use it. Okay. Third is weatherize. Weatherize मतलब pay attention how the weather is and keep as much as you can, मतलब अच्छे से वेदर माहौल बना के रखो, so that you can do it in a good way. या फिर इन्वेस्ट इन एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस. ना एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस मतलब अभी देखो बहुत सारे एडवर्टाइज आते हैं, CFL बल्ब्स चले 40% ज्यादा, चले 60% ज्यादा, फिर LED ट्यूब्स चले 20% ज्यादा, एंड व्हाट्सएवर. देन एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस मतलब सोलर एनर्जी भी आएंगी उसमें, क्योंकि सोलर एनर्जी इज द मोस्ट एफिशिएंट एनर्जी. जितना सोलर एनर्जी हमको देती है उतना हम लोग अगर यूज करेंगे, तो आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड ऑफ एनी अदर सोर्स ऑफ एनर्जी. सो इन्वेस्ट इन एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, फॉर एग्जांपल CFL, फॉर एग्जांपल solar energy, and also for example water energy. Now I'll tell you, there is चौथा टप्पा in Konkan, sorry, not Konkan, सह्याद्री areas. There is a चौथा टप्पा in कोयना. Okay, so कोयना में क्या करते हैं, देखो water comes from upside, because जो पानी कोयना का पानी रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट भी यूज करती है, एंड कोयना का पानी सातारा सांगली वो डिस्ट्रिक्ट भी यूज करते हैं. बट यू नो व्हाट इज द सीन, कि पानी जो यूज होता है वो हमारे इधर चौथा टप्पा है. पहला टप्पा, दूसरा टप्पा, तीसरा टप्पा होके चौथा टप्पा आता है. यू मस्ट बी नोइंग दैट 1 2 3 4 मतलब पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा. सो पहले टप्पे पे वो पानी यूज होके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रेडी करके सेकेंड टप्पे पे आता है. फिर वो यूज करते थर्ड टप्पे पे आता है. फिर वो यूज करके फोर्थ टप्पे पे आता है. फोर्थ टप्पे पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है. मीन्स एक ही वाटर फ्लो, एंड इट इज गिविंग राइज टू 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स.
सो दिस इज एनर्जी एफिशिएंट, मतलब एक ही चीज है पर वो एक चीज हम लोग 4 बार यूज कर रहे हैं. इजंट इट एन अमेजिंग थिंग दैट वी आर इन्वेस्टिंग अवर नॉलेज सो गुड. एंड दैट्स व्हाई देखो, दैट्स वाई जब भी कोयना में पानी ज्यादा होता है तो हमको बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि कोयना का 4 टप्पे है. तो अगर समझो, कभी हो ना ऐसा, बट अगर समझो कुछ हो गया तो इट विल फ्लो अस, टोटली इट विल फ्लो अस. Yeah, that's why I want to say that use energy efficient appliances. अभी energy efficient appliances में ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं आएगा. I just gave you an example of it. So appliances मतलब ऐसी चीजें जो हम डेली यूज करते हैं. Like I said you, ऐसा मिक्सर यूज करो जो कम साउंड जनरेट करेगा, उसके वजह से क्या होगा, एक एनर्जी रिसोर्स कम हो जाएगा. एंड सो ऑन, देयर आर मेनी मल्टीपल थिंग्स. CFL यूज करो इंस्टेड ऑफ बल्ब्स एंड सो ऑन. Reduce water waste, most important thing. In the water cycle lesson, we have already seen that कितना पानी है इस दुनिया में, that is 79%, but we are not getting even 1 single% to use for our personal thing. इतना कम पानी हमको मिल रहा है, वो भी हमको मतलब सबको यूज में आ रहा है. बट द मेन मोटो ऑफ सेइंग इज रिड्यूस वाटर वेस्ट, बिकॉज ऐसे बहुत सारे एरियाज है इन अवर कोंकण, और कोंकण के बाहर भी. मोस्टली कोंकण इज फ्लरिश विथ ईच एंड एवरी सोर्स, बट कोंकण के बाहर ऐसे बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे पानी बहुत कम है. सो लातूर वगैरह एरिया में जब भी एंड ऑफ समर सीजन रहता है तभी बहुत ज्यादा पानी की कटौती होती है. दिस शुड नॉट हैपन टू यू एंड दिस शुड नॉट कॉज ग्लोबल वार्मिंग. दैट्स व्हाई reduce water waste. Actually eat the food you buy and make less of it meat. Actually eat the food you buy and make less out of it meat. Means what? Whatever food you are taking. अभी देखो बहुत सारे हम लोग शादियां भी देखते हैं. Let us come to the food which we don't buy. शादियां है हमारे इधर होती है. सो सपोज एक रो बैठ के उठा, उसके बाद एक टब भर के, मैं तो कम साइज दिखा रही हूँ, एक बहुत बड़ा टब भर के वेस्ट निकल आता है. वाई इज दैट सो? क्योंकि फ्री का फूड है, खाओ नहीं तो फेंक डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा लोगों का मानना है. बट eat the food, eat the food, that is the most important thing. I take care of my family that हमारा food waste ना हो. You also take care of the family that तुम्हारा भी food waste ना हो. So eat the food and don't make it less of a meat. मतलब जो भी खाना हो उसको चिकन मटन समझ के खा जाओ and make it useful for your body. Okay, understanding? Don't think that ये food अच्छा नहीं है, ये taste नहीं है and so on, because everyone has the matter of taste in their tongue. Taste buds should get satisfied. But ग्लोबल वार्मिंग की वजह ये भी है कि हम लोग कितना भी वेस्ट करेंगे फिर उसको जलाना पड़ता है, उसके वजह से पोल्यूशन होता है, उसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है. एज सिंपल एज दैट. देन बाय बेटर बल्ब्स. नाउ बेटर बल्ब्स आई हैव ऑलरेडी सेड यू इन दिस फिगर दैट शी इज चेंजिंग द लाइट बल्ब. मतलब क्या? जो बल्ब ज्यादा वैट पावर की है उसको निकाल दो और बेटर बल्ब यूज कर दो. पुल द प्लग्स. पुल द प्लग मतलब जो भी प्लग तुमको यूज में नहीं है उसको तुम लोग निकाल के बंद कर दो. ओके, क्योंकि अगर यूज में नहीं है देन देर इज नो पॉइंट इन कीपिंग इट ऑन. ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने फोन चार्जिंग को लगाया, फोन चार्जिंग हो गया, फोन निकाल दिए और चले गए, और जो बटन चालू था वो चालू ही रह गया. या सो दिस शुड नॉट हैपन. Okay, so these are few of the control measures to stop global warming. Again, I'm telling you, it is not 100% possible to stop the global warming, but we can try our best to minimize it. Then ozone layer depletion, very important point, ozone layer depletion. Ozone layer depletion occurs when chlorofluorocarbons and halogen gases formerly found in the
aerosol spray cans and refrigerants are released in the atmosphere. Now see here, coolant होते हैं. Coolant मतलब रेफ्रिजरेटर्स. वो जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें एक ऐसा कुछ तो होता है जो हमारे जो हमारे यू कैन से हमारे एटमॉस्फेयर में CFC फैलाते हैं. व्हाट इज CFC? CFC इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ three elements, that is chlorine, fluorine and carbon, and these three are very much connected to the ozone layer depletion. So chlorofluorocarbons and halogens जो है वो ओजोन मॉलिक्यूल्स में जब ऊपर जाते हैं और ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स जो इतने कनेक्टेड होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं. और जब भी ब्रेक डाउन करते हैं तभी क्या होता है, उसकी कैपेसिटी कम होती है ओजोन लेयर की. इसके वजह से यूवी रेस का इफेक्ट डायरेक्टली हमारे बॉडी पे चला हो जाता है. और यूवी रेस का इफेक्ट डायरेक्टली हमारे बॉडी पे आ जाने के बाद वी कैन गेट स्किन कैंसर, or we can get rashes, we can get pollens, or we can get multiple things. So ozone layer depletion is a very important thing. We have already seen about ozone layer depletion in the past lecture. I'll show you this. ये जो कवरिंग दिख रही है ना, जो ऐसा ट्रांसपेरेंट कवरिंग, that is ozone layer. Yeah, that is atmosphere, ozone layer, anything you can say. Now see here one more figure is there about ozone layer depletion. That is सन है, वो रेडिएशन प्रोवाइड कर रहा है, राइट. वो रेडिएशन मतलब सन रेज प्रोवाइड कर रहा है. नीचे अर्थ है, अर्थ के बाजू में एक लेयर है विच इज थिक लेयर, दैट इज द एटमॉस्फेयर. मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सिमिलर गैसेस आते हैं. एंड उसके बाजू में है ओजोन लेयर. सो जहाँ पे रेडिएशन पड़ रहा है उधर से अल्ट्रावायलेट रेज रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, और नीचे से भी गैसेस ऊपर जा रहे. कौन से गैसेस? ये वाले, आई शो यू. ये तो ये वाले गैसेस जब भी ऊपर जाते हैं तभी होता ऐसा है कि जो ओजोन लेयर है उसको ब्रेक डाउन करते हैं. कैन यू सी द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ओजोन लेयर? ओके, उसको ओजोन होल भी बोलते हैं. तो ओजोन होल एक बार होने के बाद इट कम्स टू अस, और वो दिन दूर नहीं है कि पूरा ओजोन होल मतलब पूरा ओजोन लेयर ही चला जाए. एंड देन every person of the world will be suffering from skin cancer. Some will be suffering from rashes and similar. And tanning of skin is so there only, that if you are going in the sun rays with less, मतलब अगर समझो मेरा इतना हाथ खुला है तो ये हाथ मेरा काला पड़ जाएगा बिकॉज ऑफ टैनिंग जो होता है ओजोन होल के वजह से या एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट के वजह से. देन इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन. नाउ ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से देयर आर टू इफेक्ट्स. एक इफेक्ट जो नीचे होता है, एक इफेक्ट जो ऊपर होता है. तो नीचे वाला इफेक्ट क्या होता है कि लोकल एयर पोल्यूशन होता है. मतलब जो लोकल एयर है वो पोल्यूट हो जाती है. जैसे नाउ यू नो दैट इन दिल्ली इन द विंटर सीजन you are not able to see anything that is in front of you. It becomes literally so difficult that गाड़ियां एक दूसरे को ठोक जाती है क्योंकि उनको दिखाई ही नहीं देता कि सामने कोई है या नहीं है. सो लोकल एयर पोल्यूशन हो जाता है. एंड देन कम्स द ग्लोबल एयर पोल्यूशन विच इज डेंजरस देन लोकल एयर पोल्यूशन. अभी समझो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम खुद से कर रहे हैं और उसका हमको इफेक्ट मिल भी रहा है. बट थिंक अबाउट द एंटार्क्टिका, आर्कटिक ओशन और आर्कटिक सर्कल. उधर ऐसा सीन है कि उधर तो गाड़ियां चलती भी नहीं है, पर ग्लोबल इफेक्ट की वजह से वहां का आइस इतनी जल्दी मेल्ट हो रहा है, इतनी जल्दी मेल्ट हो रहा है कि सब वहां का जो बर्फ है वो पानी पानी हो रहा है. एंड व्हेन पानी पानी हो जाएगा तब भी हमारी पूरी जो अर्थ है, अभी जो है हमारे पास अर्थ, वो पूरी पानी से भर जाएंगी. So it not only affects the local air pollution, but it also affects the global air pollution. So local air pollution का impact is less, whereas global air pollution का impact is more and more serious, dangerous you can say. Now effects of ozone depletion. Effects of ozone depletion for humans and environment
Ozone layer depletion causes increased UV radiations levels at the Earth's surface, which is damaging human health, marine life, and agriculture. मतलब ओजोन डिप्लीशन मतलब क्या कि यूवी रेज जो है जो हमारे हमको सन से आते हैं सी ना वेयर वी आर कंसिडरिंग दैट सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी और सन अकेला ही सब एनर्जी को इनफ है वैसे ही सन के सम हार्मफुल रेज लाइक द यूवी रेज वो क्या कर रहे हैं ओजोन लेयर को रिपीटेडली डिप्लीट कर रहे हैं मतलब कम कर रहे हैं सो क्या डैमेज हो रहा है फर्स्ट वन तो ह्यूमन हेल्थ डैमेज हो रही है ह्यूमन हेल्थ कैसे डैमेज हो रही है ह्यूमन हेल्थ इस वे से डैमेज हो रही है कि अभी समझो ह्यूमन हेल्थ इज अंडर द ओजोन होल तो उसको स्किन कैंसर हो जाएगा मे बी उसको थ्रोट कैंसर हो जाए क्योंकि जबान पे अगर वॉट एवर हैपन्स देन इट विल डायरेक्टली गो इनसाइड अवर नेक जिसकी वजह से थ्रोट कैंसर हो जाएगा डैंड्रफ भी होते हैं हेयर फॉल होता है मल्टीपल थिंग्स बट द थिंग्स विल बी आउटसाइड सो इट कॉजेज द डिप्लीशन इन द ह्यूमन हेल्थ और डैमेजेस द ह्यूमन हेल्थ फिर मरीन लाइफ इज देयर ना मरीन लाइफ इज देयर मरीन लाइफ मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मरीन के अंदर है सी के अंदर है ओशियंस के अंदर है उसकी वजह से भी ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है क्योंकि ग्लेशियर्स ही अगर पिघल रहे हैं तो उधर के जो मरीन एनिमल्स है स्पेसिफिकली पेंगुइन्स दे आर नॉट हैविंग एनी होम नाउ सो उसकी वजह से the effects of ozone layer depletion cause a huge effect on the human life. Now, agriculture is there. Now, since the sun rays are coming so badly and so effectively, UV rays इतनी ज़्यादा आ रही है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा ओजोन लेयर है ना सारे क्रॉप्स को बर्न कर देती है ओके बर्निंग अकर्स ड्यू टू द ओजोन लेयर डिप्लीशन इसके वजह से वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द क्रॉप्स दैट फार्मर्स प्रोवाइड इसलिए कुछ कुछ क्रॉप देखो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं so that is all because of the ozone layer depletion so measures to protect the ozone layer so how can we protect the ozone layer same thing which we have studied here how we can stop the global warming same to same ditto we can stop the ozone layer depletion so avoid the consumption of gases dangerous to the ozone layer due to their content or manufacturing process. Minimize the use of cars. Do not use cleaning products that are harmful to the environment and to us. Buy local product. ये buy local product इसलिए दिया गया है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत गाड़ियाँ लगती है बहुत गाड़ियाँ लगने के बाद बहुत सारा पेट्रोल लगेगा बहुत सारा पेट्रोल लगने के बाद बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हो जाएगा जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा और हमारा ओजोन लेयर डिप्लीट होते जाएगा दैट्स व्हाई दे हैव सजेस्टेड दिस थिंग now acid rain now you know the process that sun absorb करता है वाटर को इवापोरेशन के थ्रू बट समझो अगर ऐसी जगह से इवापोरेशन हो जहाँ पे पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है सो ऑब्वियसली जो ऊपर जाएगा इवापोरेशन के थ्रू वो नीचे आते वक्त मतलब वैसे ही आएगा ना जैसे ऊपर गया है the clouds have the ability to filter the water and send it down but it can't filter up more than its extent इसलिए acid rain is a rain or any form of precipitation that is unusually acidic meaning that it has evaluated levels of hydrogen ions okay it can be harmful it can have harmful effects on plants aquatic animals and infrastructure now I will tell you the figure which is there downside देखो इधर कंट्री कंपनी है सो कंपनी से बहुत सारे गैसेस निकल रहे कैन यू सी वन वन दिया हुआ है सो दोज आर ऑल द गैसेस फिर उसके बाद क्या होता है पानी ऊपर चला जाता है मतलब इवेपोरेशन होता है और क्लाउड्स फॉर्म होते हैं क्लाउड्स फॉर्म होने के बाद क्या होता है बारिश लगती है सो बारिश नहीं लगती देखो एक साइड ऐसे दिया है कि पानी गिर रहा है एक साइड ऐसे दिया है कि हेल स्टोन्स गिर रहे हैं हेल स्टोन्स मतलब इसे ना दगड़ फ्रॉम द मतलब क्या उसको वर्ड बोलते मुझे अभी याद नहीं आ रहा है वो गिरते हैं सो दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ और वो पानी जो फ्लो होके
अपने नदी वगैरह में आता है. So इसके वजह से acid rains has a huge impact on the plants and aquatic animals. Now what is next? The infrastructure. So infrastructure मतलब क्या? You know when Shahjahan built Taj Mahal, it was marble white in color. मतलब बहुत सफेद था वो. और सफेद होने के बाद अभी उसके बाजू में कुछ तो हुआ था, एक कंपनी खड़ी हुई थी जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा, मतलब उधर से चिमनी से बहुत ज्यादा ये निकल रहा था, वोटिकन से पोल्यूशन निकल रहा था. एंड अल्टीमेटली क्या हुआ, जो व्हाइट कलर का ताजमहल था वो अभी उसके थोड़े थोड़े साइड्स येलो कलर के हुए, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ SO2. SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज ड्यू टू पोल्यूशन and also due to the industry. So acid rains not only have the harmful effects on plants and animals but also on the infrastructure. The effects of acid rain, see here, you can see acid, smoke, chemical, clouds, snow, atmosphere, industry, pollution, ecology, environment. ये बहुत सारे effects हैं acid rain के. You can take it one by one. Measures to curb acid rain मतलब stop. पहला तो है energy conservation, मतलब जो भी energy unnecessary है उसको stop कर दो. उसको stop करने के अलावा you don't have any other option. You have to stop the energy which is not actually in use. Conserve the energy. देन नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्टेशन. मतलब ट्रांसपोर्टेशन से हम लोग एक ऐसा फायदा हो सकता है कि बिल्कुल भी गाड़ियाँ कुछ भी एमिट नहीं करेंगी पोल्यूटेंट्स, जिसके वजह से यू कैन इजीली स्टॉप द पोल्यूशन on use of fossil fuels, and thus you can get the proper rain, not the acid rain. फिर है अल्टरनेटिव फ्यूल्स. अल्टरनेटिव फ्यूल्स मतलब क्या, एक बार हमने पेट्रोल और डीजल यूज करने लगे हम लोग, तो कभी ना कभी तो वो खत्म होने वाले हैं. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ देख के यूज अल्टरनेटिव फॉर लाइक CNG गैस, यू कैन से ऑन मल्टीपल थिंग्स लाइक चार्जिंग वाली गाड़ी आई है एंड सो ऑन, मल्टीपल थिंग्स आर देयर, you can use them. So today in this lecture we have seen measures to control the global warming, how you can stop global warming, ozone layer depletion, then effects of ozone depletion, measures to protect ozone layer, acid rain, effects of acid rain, and measure to curb or stop the acid rain. So successfully we have completed our chapter number 7. Hope to see you in the next period. Study well, be safe. Goodbye. Thanks for joining.